we are going to start with a brand new chapter, guys. Chalo, all of us, I want your videos to be on fast. नहीं नहीं ऐसा कैसा होएगा बेटा, मेरा लेक्चर में ब्रेक देगा, भगवान को क्या मुंह दिखाएगा मैं? नहीं, अलाउड ही नहीं है बेटा अपने को ब्रेक देना. चलो नाउ, एनीवन हैज अ टाइप सी चार्जर? टाइप सी चार्जर, सब आईफोन वाले लोग हैं यहाँ पे, अमीर लोग. चार्जर नहीं कैरी कर रहे हैं हम लोग. ओके, वेरी इंप्रेसिव, माय बैड. सी आर, ओके, नहीं वो कोई ऑनलाइन बोलता है मेरे पास है, क्या करेंगे? ओके, एनीवेज, very impressive. Chalo, now guys, we are starting with a new chapter, chapter number 2, which is called as incorporation of a company and matters incidental thereto. अभी इसमें क्या आएगा? Now when we started our company law, chapter 1, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है वहां पे? That A कितने टाइप का कंपनी हो सकता है और वो कंपनीज का फीचर्स क्या होता है. दैट इज व्हाट वी हैव हैड एज अ बेसिक डिस्कशन एंड वी हैव कन्वर्टेड द कंपनी. अब चैप्टर 2 में हमारा फुल फ्लेजेड डिस्कशन होगा एज टू हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. तो अभी हमको पता है कंपनीज कितना होता है, उसका कन्वर्जन क्या है, उसका फीचर्स क्या है. अब अपने को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का है, तो कंपनी को हम लोग इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. बट बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड couple of basic factors of this particular chapter. The first amongst that being the meaning of a term called as promoter. We need to understand what is a promoter. Chalo, I want some ideas on that. Raise your hands and answer. Promoter क्या होता है? Promoter कौन होता है? बोल बेटा. Who initiates to start the company? Fantastic. Promoter. और कुछ? कौन होता है promoter? क्या करता है वो? Brings the, जोर से बोल बेटा ऋषि. Idea. अबे that's the most important point. Promoter is a person who conceives the idea of the business. But it's all about the idea. पैसा लगाने वाला बहुत लोग बैठा है. अगर तुम्हारे पास अच्छा valid workable idea है, then you can always flourish as your business. Okay, तो promoter is a person who conceives the idea of the business. Fantastic. और कुछ? Yes, yeah. Controls the, yes, he will definitely control and direct the work of the entire business. Fine. Beyond that, he will register the name of the company. वो company को basically incorporate करेगा. और क्या करेगा promoter? He will appoint the first director. और come on, more ideas. Initial capital not always, but ठीक है, he will bring the capital. और कुछ? Anything else? Promoter. So there's a section in the Companies Act, section number 2, clause 69, which talks about promoter. तो promoter क्या होता है? promoter के लिए 4 आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए. Number 1, promoter is a person who conceives the idea. Promoter is a person who conceives the idea of the business. Second, guys, promoter is a person who is named in the prospectus of the company. He always has to be named in the prospectus of the company. Why should I name him in the prospectus of the company? अरे उसका आइडिया है, और क्यों मैं उसको नाम लिखूंगा प्रोस्पेक्टस में? Any reason for that? Yes, बेटा Krish. Yeah, that's okay. He's the first director. Tanu, you are saying something? बोल बेटा. उसके ऊपर ट्रस्ट करके लोग इन्वेस्ट करेगा. Guys, always remember that whenever you invest in a company, you have an investment decision to be made. Okay, तो तुम क्या सोच के इन्वेस्ट करेगा कंपनी में? When you want to invest in a company, let's say you are a shark and you are investing in a company, what is the point of decision for you? Is that कि wow, कंपनी में कितना अच्छा फिक्स्ड एसेट्स है? ऐसा होएगा? कभी नहीं होता है बेटा. You always invest on the person. I don't know if you've seen couple of episodes of Shark Tank. वो लोग बोलते हैं कि मुझे आप अच्छे लग गए. You are enthusiastic. तुम कुछ करेगा. तुम्हारा धंधा कैसा होएगा मेरे को नहीं पता है, पर मेरे को तुम पे विश्वास है. मैं तेरे ऊपर पैसा लगाएगा. That is the way a business works. You always invest in the businessman, not on the business. I don't know if you agree with that. In fact, at the start of the season 2 of Shark Tank, okay, पीयूष बंसल ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था जो सच है बिजनेस के वर्ल्ड में. Whenever there is a horse race, डर्बी होता है ना, डर्बी पता है, right? You never bet upon the horse.
you bet upon the jockey. You bet upon the jockey. Okay, that's how the entire business works बेटा. तो धंधे में you will always bet upon the person कि नहीं यार इसके ऊपर पैसा लगाएगा ना तो एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा. That is the way it works. So promoter has to be named in the prospectus. यहाँ पर usually मैं दो एग्जाम्पल देता है. One is Mr. Mukesh Ambani. If you look at Mr. Mukesh Ambani, बेटा ही इज अ पर्सन जिसके ऊपर आज भी कोई भी पैसा लगाएगा ना तो डेफिनेटली वो पैसा रिटर्न तो आएगा, उसके साथ एक्सेसिवली ग्रोथ होएगा. I hope you agree with that, right? So he is a person who has the ability to convert the money and make it work. But on the other hand, if you talk about his own very brother, Mr. Anil Ambani, guys, उसके ऊपर पैसा वो खुद नहीं लगाएगा बेटा. तुम समझो उसको बहुत तकलीफ है बेटा. He is not a very good entrepreneur. He did not become a very good entrepreneur in spite of the fact that he had a lot of businesses. Sorry, he was given lot of businesses. There's a difference. There's a difference. तो 2006 में जब बंटवारा हुआ था दोनों भाइयों का, they were given lot of businesses to each other, right? पर उनका सब बिजनेस आज के तारीख में एकदम डब्बा हो चुका है. His flagship business was आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो आज जियो है. ओके, वो उनका राइवल है. सॉरी, राइवल नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो कंपनी मर चुका है, आरकॉम. ओके, तो आरकॉम जो था उनका फर्स्ट टेलीकॉम का कंपनी था ऑफ द रिलायंस ग्रुप. ठीक है, उसका शेयर अगर आज का तारीख में तू देखेगा बेटा उतने पैसे में पल्स आता है. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो वो भाव का उनका शेयर चालू है आज का तारीख में. और अगर तू रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव देखेगा तो अराउंड 2400 चालू है पर शेयर. उनका दूसरा बिजनेस था रिलायंस एनर्जी. रिलायंस एनर्जी अपना इलेक्ट्रिसिटी विच गॉट सोल्ड टू अदानी, विच इज नाउ अदानी पावर. आई होप यू अंडरस्टैंड. आर पावर जो उनका कंपनी था, फ्लैगशिप कंपनी था बेटा, उसका आईपीओ हुआ था. उसका आईपीओ जो जमाने में हुआ था तभी उन्होंने मार्केट से कुछ 8,000 करोड़ रेस किया था. और ये आज का बात नहीं है, ये 15 साल पहले का बात है. दे हैड रेस अराउंड 8 petty cash 1,000 crores from the market at that point of time. Yes, सोच जरा. और आज वो कंपनी ही नहीं है बेटा, कंपनी बिक चुका है टू अदानी पावर. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मिस्टर अनिल अंबानी. ओके, तो जरा समझो मैं क्या बोल रहा है. उसका नाम तो प्रोस्पेक्टस में डालेगा ना बेटा तो वाइंडिंग अप का कागड़िया साइन करना पड़ेगा. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि यू शुड ऑलवेज नेम द प्रमोटर इन योर प्रोस्पेक्टस. व्हाई? पीपल विल इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. पीपल विल इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दैट, अगर तुमने अदानी का रिसेंट एफपीओ देखा था, अडानी एंटरप्राइजेस हैड कम अप विद द एफपीओ ऑफ ओनली 20,000 crores ओनली बेटा. अभी ये जनवरी का बात है, 20,000 पेटी कैश करोड़ का उनका एफपीओ था. वो इतना उनका हिंडनबर्ग का रिपोर्ट वगैरह आया फिर भी फुल्ली सब्सक्राइब था. इट वाज फुल्ली सब्सक्राइब एफपीओ. पर लोचा क्या हुआ, साला मार्केट प्राइस गिरने लगा. 3,000 का शेयर था, 3,000 प्लस का शेयर था इनफैक्ट. ओके, 4,000 का शेयर था. अब जैसे ही आईपीओ सॉरी एफपीओ आया तभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया और उसके कारण स्टॉक प्राइस प्लमेटेड लाइक एनीथिंग बेटा. 1,000 रुपए पे गया हुआ शेयर है. 1,000 रुपए, 75% डिस्काउंट चालू था बेटा. कोई ब्रांड नहीं दे रहा आज का तारीख में. ओके, अदानी वाज ऑफरिंग. ओके, 75% का डिस्काउंट चालू था. उन लोगों ने एफपीओ कैंसिल कर दिया. बट स्टिल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जस्ट लास्ट वीक आई बिलीव, इकोनॉमिक टाइम्स में, व्हाई डिड the Indian stock market not tumble down even after this big report coming from Hindenburg? क्योंकि क्या है बेटा, आज का तारीख में भी अदानी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है. अगर उनको भगवान न करे लिक्विडेट करना भी पड़ा अपने कंपनी को, he has sufficient assets to pay off all his debts. He has sufficient assets to pay off all his debts. The point over here is कि अगर तुमने किसी अच्छे बंदे को प्रमोटर बनाया है और कंपनी में टेम्पररीली भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर अदानी एंटरप्राइजेस 1,000 रुपए पे गया था तो अभी 1,800 पे वापस आ गया है. इट हैज कम बैक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है. अग्रीड, देयर हैज बीन अ ह्यूज लॉस. ग्रुप का कंबाइंड लॉस इज ओनली 8 लाख करोड़ ओनली बेटा. लॉस इज 8 लाख करोड़ बेटा. ऐसा जोल हुआ है. बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. Still they are standing strong and maybe with time to come it will come back to its normalcy also. Okay, the point is कि promoter कौन होगा बेटा? Number one, who is named in the prospectus of the company. पर सर मैं एक प्राइवेट कंपनी है,
मेरा थोड़ी प्रोस्पेक्टस बनेगा, मैं तो प्राइवेट कंपनी है यार, और प्राइवेट कंपनी में भी प्रमोटर तो होगा यार, राइट? तो मेरा तो प्रोस्पेक्टस नहीं बनने वाला है, तो मेरे प्रमोटर का नाम कहां पे लिखने का? बेटा एवरी ईयर every company has to file something called as financial statements and annual return with the ROC. हर कंपनी को हर साल 2 डॉक्यूमेंट्स आरओसी में फाइल करना पड़ता है, कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके प्रमोटर का नाम हम लोग कहां पे लिख देंगे? एनुअल रिटर्न में, सो दैट एवरीवन नोस हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो अगर आप लिस्टिंग करने वाले हो तो आपके प्रमोटर का नाम कहां पे आ जाएगा? प्रोस्पेक्टस। अगर आप लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, यू आर अनलिस्टेड पब्लिक या प्राइवेट, तो आपके प्रमोटर का नाम कहां पर आ जाएगा? एनुअल रिटर्न। कहां पर आ जाएगा? एक बार बोलो, एनुअल रिटर्न। डू वी गेट दैट? राइट? सो फर्स्ट, promoter is a person who conceives the idea of the business. Second, is named in the prospectus or annual return of the company. Third, he is in charge of the affairs of the company. He is in charge of the affairs of the company as a member or a director or maybe both. जो आपका प्रमोटर है वो मेंबर भी हो सकता है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है. That is one, feature which the promoter carries. He is in charge of the affairs of the company as a promoter, as a director or member or maybe both. And finally, the fourth and the last point, that everyone in the company is accustomed to act. Everyone in the company is accustomed to act. एक मिनट सर, ये accustomed to act का मतलब क्या है? Accustomed to act, obliged or bound to act. Everyone in the company is bound to act on the basis of directions and instructions given by the promoter. तो जैसा promoter बोलेगा वैसा ही होएगा, because everyone in the company is bound to act. मतलब हम लोग बोलते हैं they are accustomed to act on the basis of directions and instructions given by the promoter. तो ये चारों point collectively are called as section number 2 clause 69 of the Companies Act. That is promoter. Number one, he is conceiving the idea of the business. Second, he is named in the prospectus or annual return of the company. Third, he is in charge of the affairs of the company as a director or member or both. And finally, everyone in the company is accustomed to act on the basis of directions and instructions given by the promoter. Do we get this? Yeah? Okay, up. थोड़ा पॉइंट समझो. Okay, I want us to look at two different points very, very critically. First, I'll put up a statement. You have to tell me whether it's true or false. Only an individual can be a promoter of a company. I say only an individual can be a promoter of a company. Is that true or false? True or false? बेटा it is false. Why? नहीं बेटा, not minimum 2, but बहुत सारे लोग कर सकते हैं. अच्छा, only individual or group of individuals can become promoters, ऐसा मैं बोलता हूं तो वो ट्रू है. Only individual or group of individuals can become promoters of a company, तो वो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. क्यों? अब क्यों फॉल्स है बेटा? even an artificial person can be a promoter. Even an artificial person can be a promoter. Even a company can be a promoter of another company. Classic example, Reliance Industries Limited, which is the promoter of Reliance Jio Infocom Limited. Please remember, only individuals का काम नहीं है. It can be a company also. It can be in fact LLP also. Any entity can become the promoter of any other company. Do we get this? No one says yes, right? Okay. चलो थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say that we have an individual. Okay, तो मान लो we have अभिषेक को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का है. Okay, and Arushi is a qualified chartered accountant. मान लो बेटा आज के लिए that you are a qualified chartered accountant and she is a pro in incorporating companies. तो अभिषेक जो है वो आरुषि को अप्रोच करते कि लुक, आई वांट टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी. तो आरुषि बोलती है डन मिस्टर अभिषेक, वी हैव अ डील, वी विल इनकॉर्पोरेट योर कंपनी. एंड फ्रॉम दैट डे आरुषि टेक्स ओवर द एंटायर चार्ज.
वो अभिषेक को बोलती तुम ये करो वो करो ये करो, प्रमोटर को बोलती है तुम ये करो वो करो सब करो, ओके ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये सर्टिफिकेशन लेके आओ, ये सब बोलना चालू हो गया. सो नाउ एवरीवन इन द कंपनी is accustomed to act as per the directions and instructions given by Arushi. So CA Arushi, okay, is she the promoter of the company? अरे वो उसके बेसिस पे ही सब लोग बोल रहे हैं यार कि सब लोग एक्ट कर रहे हैं, accustomed to act हो गया. So is she the promoter of the company? No, why not? She is simply acting in a professional capacity. फिर से, she's simply acting in a professional capacity. So just because you are acting in a professional capacity, that does not mean that you are the promoter. Am I very clear? No one says yes. Okay, this is the meaning of the term promoter in the Companies Act. क्योंकि promoter के बिना ये चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता. You have to first understand कि कंपनी चालू करने से पहले एक प्रमोटर लगेगा मेरे को. Clear? Chalo, all of us into the textbook. Let's read certain points together. आ जाओ, पेज नंबर 2.2, 2.2. हाँ, चलो guys, let's start reading that. Finally, all of us. ये टोपी ये जादू बन के क्यों बैठे? पढ़ो. उधर इधर नहीं बेटा, इधर देखो. हाँ, तुम भी मत करो बेटा. रीड. Promoter, we are on page number 2.2, 2.2. Promoter, meaning promoter is the one individual firm or company who performs the preliminary duties necessary to bring a company into being and float it. That is to bring the company into existence. Float it. To float का मतलब क्या है? तैरना. To float, to जिंदा रखना. To float a company, meaning to incorporate a company. Wait, don't write there. क्या करना पड़ेगा? Legal words. रुको अभी नहीं, पहले पूरा पढ़ने दो, बाद में मेरे को याद रहेगा, तुमको नहीं रहेगा बेटा. पढ़ो. Let's read further. Individual or a company, promoter, section number 2 class 69 means exhaustive. बेटा अगर मैं कुछ एम्फोसिस करके पढ़ रहा है तो कोई रीजन होएगा ना. हाँ, दिस इज exhaustive. 1. Who conceives the idea of the business. A. Who has been named as such in the prospectus. तो या तो उनका नाम prospectus में है अगर मैं listed है. I hope you understand. Or identified by the company in the annual return. This is for unlisted or maybe a private company. ये समझ में आता है ऑल ऑफ अस. तो या तो प्रोस्पेक्टस में नाम होगा और वर्ड यूज किया है बेटा, मतलब इधर और है. या तो प्रोस्पेक्टस में होएगा या तो एनुअल रिटर्न में होएगा. रेफर टू इन सेक्शन नंबर 92. और नीचे एक और है. रीड फर्दर. बी. हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, whether as a shareholder, director or otherwise. Can he be both बेटा? Yes. तो otherwise के बाजू में you can write both. बोथ का मतलब क्या हुआ यहां पे? शेयर होल्डर भी होएगा, डायरेक्टर भी होएगा. और सी. In accordance with whose advice, directions or instructions the board of the company is accustomed to act. Accustomed to act मतलब bound to act. यहां तक समझता है. अभी दो और ये जो है ना, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है. व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? जो ए के बाद और है, बी के बाद और है, उसको मैंने सर्कल और हाईलाइट दोनों किया हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? दैट इवन इफ यू आर फुलफिलिंग वन ऑफ दीज, आई विल कंसिडर यू एज अ प्रमोटर. आई विल कंसिडर यू एज अ प्रमोटर. इट वी फॉलो दिस. यहां तक पूरा समझता है. प्रमोटर मीन्स एंड सेक्शन नंबर 2 क्लास 69. चलो आगे. अ पर्सन हु मेयरली एक्ट्स in a professional capacity on behalf of the promoter, such as a solicitor or an accountant, and who is paid by him, is not a promoter. What do you mean by a solicitor? Not lawyer, beta. थोड़ा इज्जत दो. Advocate? Nah. Beta is a legal advisor. Solicitor necessarily तेरे लिए कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ेगा बेटा. वो तेरे को लीगली एडवाइस करेगा. लीगल एडवाइजर होता है. लीगल एडवाइजर. चलो ये डन.
ये यहां तक समझा गया? चलो गो टू योर नोटबुक्स, नोट 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 नोटबुक्स। वहां पर फर्स्ट चैप्टर में आपने जहां पर भी लिखना छोड़ा है उसके बाद 8 साइड्स छोड़ दो। कितना? 8। 8 कहां से प्रकट हुआ बेटा? 8 क्वेश्चन है, 7 हमने किया है, एक तेरा क्लास टेस्ट है, राइट? तो 8 साइड्स आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको एक ब्रांड न्यू पेज लेना है और उसके ऊपर चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इncidental दैट। बोलिए लीगल वर्ड्स। अबे रुक, वही तो मैं बोल रहा है। ए फर्स्ट पेज के पीछू तुमने 8 साइड छोड़ा, हाँ, उसके बाद 9th पेज आया, हाँ, वहां पर एक फ्रेश न्यू पेज लेके चैप्टर का हेडिंग दे दो, चैप्टर नंबर 2, और वहां पर हेडिंग लिखो सिर्फ पहले। फिर हम लोग को समरी बनाने का है ना गांडा, ये वो 4 पेज वाला समरी है ना जो फर्स्ट चैप्टर में बनाया था। तुम लोग ऐसा क्यों देखता है मेरा तरफ? बनाया कि नहीं फर्स्ट चैप्टर में? हाँ, तो शेम टू शेम यहाँ पे बना डालो। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिखा उसमें, कुछ भी नहीं था, ये था। हम आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बता देते, इतना था उसमें, कछु नहीं लिखना है। हाँ, ये तुम लिखो ना, वो 4 पेज का समरी बनाओ ना हेडिंग देके। ये तुमको समझता है मैं क्या बोल रहा है? हाँ, बिकॉज यू लुक कंफ्यूज्ड। हाँ, यस सर, वी आर। फर्स्ट चैप्टर में 4 साइड्स का समरी बनाया था। कोई कुछ बोलता है नहीं? पीपल आर वी डन? नो सर। वैम्पायर को काटना पड़ेगा। अरे गाइस, वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द लीगल वर्ड्स। कैन वी स्टार्ट राइटिंग दैट? आपका 4 साइड्स का समरी बन जाना चाहिए था बाय नाउ। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। चलो, द फर्स्ट वर्ड ओवर देयर दैट वी शुड राइट इज टू फ्लोट। टू फ्लोट। टू फ्लोट अ कंपनी का मतलब होता है टू इनकॉर्पोरेट। टू फ्लोट मतलब टू इनकॉर्पोरेट। लिखा? सेकेंड, accustomed to act। accustomed to act का मतलब होता है bound to act। accustomed to act का मतलब होता है bound to act। चलो डन? यस गाइस, कम ऑन। सो नाउ गाइस, ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन था of chapter number 2 wherein we talked about something called as a promoter। section नंबर बोलो, to class 69। done? डन। चलो अभी थोड़ा आगे जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स बेटर। गाइस, अभी मुझे कंपनी बनाने का है, वी आर डेफिनेटली गेटिंग इनटू द प्रोसीजर, बट हमको एक चीज समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि कंपनी बनाने से पहले भी थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ विल दैट वर्क। अभी मान लो, लेट अस से that we have a person, let us say we have प्रार्थना। ओके, तो प्रार्थना जो है वो एक थॉट में है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको तो लॉ सब आता है, उसको बोर हो रहा है क्लास में, तो उसके दिमाग में है that I want to set up a company। मैं एक कंपनी बनाना चाहती हूं, और वो उस कंपनी के बारे में ऑलरेडी सोचना चालू कर दिया है। उसने सोचा है she'll set up a company, अब वुमेन क्लोथिंग लाइन का कंपनी में चालू करेगी, उसमें ये होएगा वो होएगा, ये सब उसने सोचना चालू कर दिया है। इनफैक्ट नाम भी सोचना चालू कर दिया है, प्रार्थना कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। मान लो ऐसा उसने सोचना चालू कर दिया है। तो टुडे शी इज द प्रमोटर। टुडे शी इज द प्रमोटर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। आज प्रमोटर है, कल कंपनी खुल जाएगा, है ना? संडे प्रमोटर, मंडे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ट्यूसडे वाइंडिंग अप। ऐसा नहीं होता बेटा, राइट? इट टेक्स टाइम। ओके, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। तो मान लो कि प्रार्थना ने सोचा है दैट शी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, और उसके लिए उसने ये भी सोचा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अभी मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो मुझे एक फैक्ट्री लगेगा।
अगर फैक्ट्री बनाने का है तो उसके लिए प्लॉट ऑफ लैंड लगेगा, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू अ ब्रेन्स। आज उसके दिमाग में ये थॉट प्रोमलगेट हुआ है, आज ये थॉट आया है, तो इट विल टेक सम टाइम for that thought to actually come into reality. Okay, so now let us say that one day she is traveling and she reaches a particular place, let's say, you know, on the western line itself, let's say she reaches a place called Palghar, reaches a place called Palghar. अभी पालघर में आपको बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिल जाएगा, a lot of industrial units where factories etc are built. तो अभी कंपनी बना नहीं है, कंपनी नहीं बना है, कंपनी प्रार्थना के दिमाग में है बेटा, राइट? और उसके दिमाग में ये थॉट है कि यार मेरे को फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के लिए मुझे एक प्लॉट चाहिए। तो उसने क्या किया है, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, वो एक दिन पालघर पहुंच गई है, वहां पर उसको एक प्लॉट पसंद आ गया है, एंड शी नाउ डिसाइड्स टू परचेज दैट प्लॉट, शी नाउ डिसाइड्स टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्लॉट। ओके, मान लो उसने वो प्लॉट खरीद लिया, एकदम गरीब टाइप का प्लॉट था बेटा, 20 करोड़ रुपए का प्लॉट। तो प्रार्थना ने बोला ठीक है, ये महीने का पॉकेट मनी बच गया, तो अपन उससे प्लॉट खरीद लेगा। वेरी गुड। तो प्रार्थना ने क्या किया, प्रार्थना ने वो प्लॉट खरीद लिया इन हर ओन नेम या इन द नेम ऑफ प्रार्थना कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। गांडा, कंपनी बन गया क्या? अबे नहीं ना, उसके दिमाग में, हाँ तो दिमाग में जो कंपनी उसके नाम का चेक थोड़ी बना सकता है यार। तो शी विल परचेज द प्लॉट ओनली इन हर ओन नेम। तो प्रार्थना जो है वो अपने पर्सनल नाम पे वो प्लॉट खरीदेगी, बट क्या उसने वो प्लॉट खुद के बंगला बनाने के लिए खरीदा है? नो, फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, कंपनी का फैक्ट्री बिल्डिंग। तो एक मिनट, प्लॉट हैज बीन परचेज्ड बाय द प्रमोटर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन बट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, इन हर ओन नेम बट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। डू यू अग्री? डू यू ऑल अग्री? राइट, ठीक है। अब मान लो कि उसने वो प्लॉट खरीद के रख दिया, अभी 6 महीना हो गया है, उसने पूरा अपना बिजनेस प्लान बना लिया कि कैसे वर्केबल है, क्या रिक्वायरमेंट होगा, सब रेडी है, एंड शी हैज फाइनली इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी कॉल्ड प्रार्थना कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी बन गया। अब कंपनी बन गया है, पर प्लॉट जो है वो प्रार्थना द इंडिविजुअल के नाम पर है, पर हमको तो वो प्लॉट कंपनी में चाहिए। Do you all agree? अगर वो प्लॉट हमको कंपनी में चाहिए तो अभी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्रार्थना द इंडिविजुअल के पास से वो प्लॉट खरीदना पड़ेगा। Do you all agree? राइट? तो अभी दो चीज हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रार्थना ने एंटर किया था ऑफ परचेसिंग द प्लॉट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वी इन लॉ कॉल दैट एज अ प्री incorporation contract. We call that as a pre-incorporation contract. Contract entered into by the promoter on behalf of the company before incorporation. Contract entered into by the promoter on behalf of the company before incorporation is called as a pre-incorporation contract. Done? अब company incorporate हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। अब दो चीज हो सकती है, एक, कंपनी प्रार्थना द इंडिविजुअल से वो प्लॉट खरीद लेगा, कंपनी प्रार्थना द इंडिविजुअल से वो प्लॉट खरीद लेगा, क्योंकि मान लो दैट इज वेयर द फैक्ट्री इज सपोज्ड टू बी मेड। पर अगर प्रार्थना के दिल में आ गया लालच, 20 करोड़ का प्लॉट, वो बोलती कि नहीं मैं 25 करोड़ में ही कंपनी को बेचेगी, उसको अपनी ही कंपनी से पहले खुद प्रॉफिट कमाने का है बेटा। अगर उनके दिल में ऐसा लालची थॉट है बेटा, तो विल द कंपनी परचेज दैट प्लॉट ऑफ लैंड? नो, कंपनी नहीं खरीदेगा। तो अगर मान लो दो चीज हो सकता है, ए, द कंपनी अडॉप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं पता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक शब्द किया होगा, नोवेशन, हाँ, नोवेशन करके कुछ किया होगा। Yes or no? The old contract shall be substituted, rescinded with a new contract. अरे yes or no? तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? सेलर एंड प्रार्थना द इंडिविजुअल। पर अब हम इसको अडॉप्ट कर देंगे, नोवेट कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा बेटा? द कंपनी प्रार्थना कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, उनका नाम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ प्रार्थना द इंडिविजुअल। डू यू ऑल एग्री? ओके, अब मान लो कि नोवेशन हो गया, प्लॉट नाउ बिलोंग्स टू प्रार्थना कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। आगे चल के अगर ये प्लॉट में कोई ऊंच नीच हो गई, समथिंग रॉन्ग हैपेंस, ओके, हु इज लायबल? इज प्रार्थना द इंडिविजुअल लायबल और द कंपनी? Rather the individual or the company? The company shall be liable. The company shall be liable. Do we get that? पर
अगर प्रार्थना जी ने लालच बताई बच्चा और कंपनी ने उनके लालच को कर दिया, ओके, मतलब उन्होंने वो प्लॉट नहीं खरीदा, कंपनी ने वो प्लॉट नहीं खरीदा, नाउ 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 कंपनी तो पिक्चर में है ही नहीं अभी, मतलब प्रार्थना वो प्लॉट के ऊपर जो करे वो उसका पर्सनल लुकआउट है, वहां पर वो क्रिकेट खेल सकती है, बड़ा हर ओन चॉइस। अब अगर वो प्लॉट में कोई ऊंच नीच हो गई, हु इज लायबल? प्रार्थना, द इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल शैल बी लायबल, नॉट द कंपनी। डू वी अंडरस्टैंड दैट? या तो ये होता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, नोवेट कर दिया, कंपनी बिकम्स लायबल। अगर कंपनी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, नोवेट नहीं किया, द प्रमोटर कंटिन्यूज टू रिमेन लायबल। अभी क्लियर? ओके, इसमें एक और एलिमेंट को मैं जोड़ना चाहूंगा और वो ये है कि whenever the company accepts or novates this particular contract, तो प्रार्थना द प्रमोटर उसने प्लॉट ऑफ लैंड दिया, उसके सामने कंपनी will have to pay her PC, purchase consideration for the plot. That point of time company will allot her shares and we call that as allotment of shares for a consideration other than cash. Allotment of shares for a consideration other than cash. Do you all agree with this? This is the simplest example. Yeah, we done? समझता है इसको क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। फिर से इट्स अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। डन? यस, इसके ऊपर मैक्सिमम एग्जाम क्वेश्चंस है। ये कंसेप्ट एकदम लल्लू दिखेगा तुमको, बोलेगा ये क्या है, पर इसी के ऊपर कम से कम 5 बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, कम से कम 5 बार बोल रहा हूं मैं, वो भी 3-3, 4-4 मार्क के लिए। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस। ओके, लेट्स रीड दैट, कम ऑन। पेज नंबर 2.3, 2.3 पे आ जाइए। लेट्स रीड दिस। प्री इनकॉर्पोरेशन, प्रिलिमिनरी और प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है बेटा? तीनों का मतलब एक ही है, और द ICAI, ओके, उनको बेटा हर बार चुल होता है। यू नो चुल बेटा? हाँ, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, मतलब खुजली बेटा। वो अलग अलग नाम से सेम कंसेप्ट पूछेगा तेरे को, so you should know what these concepts mean, right? Read that. Pre-incorporation contracts are contracts purported to be made. Purported to be made. ये purported to का मतलब क्या होता है? Supposed to. Go to your legal words. Purported to. Purported to का मतलब है supposed to. Purported to, supposed to. Purported to be made मतलब supposed to be made on behalf of a company before its incorporation. Before incorporation, a company is non-existent and has no capacity to contract. तो post incorporation क्या होगा? Company adopted, I mean contract adopted by the company liable for any breach, or contract not adopted by the company, promoter liable for the breach. So when I say that the contract was adopted, we call that as novation of contract. It is a novation of contract. चलो इतना लिखा, all of us? Okay, so 2 concepts that we have talked about on the chapter number 2 so far, they are promoter and pre-incorporation contracts. Done? अभी जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में बोला था कि 3 चीजों से पूरा चैप्टर आपको याद रहना चाहिए, 10 फीचर्स, 17 टाइप ऑफ कंपनीज एंड 4 कन्वर्जन्स। वैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी ये लिख लेते हैं। यहां पर जो 4 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, प्रोसीजर फॉर incorporation of a company. Procedure for incorporation of a company. सेकेंड होगा आपका MOA,
थर्ड होगा आपका एओए, फोर्थ होता है डॉक्ट्राइन्स। चलो गाइस डन। या सो गाइस प्लीज रिमेंबर एवरी चैप्टर में हम लोग को याद रखना चाहिए कि चैप्टर मुझे कैसे याद होगा। अ ब्रीफ समरी अबाउट व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चैप्टर। यहां पर क्या है? प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए एंड द डॉक्ट्राइन। सो आवर फर्स्ट डिस्कशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्लोज योर बुक्स, क्लोजो बेटा। चलो now let's say we want to incorporate a company. Okay, that is given in a section number 7 of the Companies Act 2013. There is a big procedure, और वो पूरा प्रोसीजर हमको याद होना चाहिए। फर्स्ट उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर आज हम लोगों ने सोच लिया है कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, एंड दे आर ऑल डिटेल्ड स्टेप्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो यू विल टेल मी कि इफ इट ऑल यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी तो क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा? रेज योर हैंड्स एंड आंसर, कम ऑन। आई वांट यू टू रेज योर हैंड्स एंड आंसर, थिंक अबाउट इट। बोल क्रिश। रिजर्व अ नेम फॉर द कंपनी, डेफिनेटली यस। एमओए एंड एओए, डेफिनेटली। और कुछ नेम होगा? एमओए बोल दर्शना। एडवाइजरी कमिटीज, बेसिकली आई कैन कॉल देम एज डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स से ही कमिटीज बनेगा, राइट? ओके, सो डायरेक्टर्स, नेम, एमओए, एओए। वेट, यस बेटा। रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। अबे धंधा करने के लिए जगह तो चाहिए कि नहीं? राइट, ओके, फैंटास्टिक। और क्या रिक्वायरमेंट है? वी गॉट 4। वेट, आई वांट समवन एल्स टू ट्राई। थिंक बेटा, बोल बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बट दैट यू नो विल बी कवर्ड इन दिस पॉइंट। एमओए, एओए, पेड अप। ओके, फाइन फाइन फाइन, वो भी एक्चुअली एमओए में आ जाएगा। एमओए जो है ना वो अपने आप में बेटा एक सब्जेक्ट है। ओके, तो उसमें वो सब आ जाएगा आपका। और कुछ? यस, मेंबर्स चाहिए, फाइन चाहिए। और कंपनी कैसा होएगा? अरे वो तो सोचना पड़ेगा कि नहीं, कंपनी बनाने का, पर बनाएगा कौन सा कंपनी? राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द कंपनी एज वेल। तो आपका जितना भी पॉइंट्स था सब वैलिड है, all of them are valid. Now let us put them in a systematic order. Let's just try and understand how they work in a sequence. So we are going to talk about section number 7 of the Companies Act 2013, which talks about the procedure. Procedure for what? Incorporation of a company. There are only 8 steps and 7 submissions. There are only 8 steps and 7 submissions to incorporate a company successfully. But wait, guys, we are going to incorporate a for-profit company. Huh? We are not going to incorporate a Section 8 company. Duh. Who does that, right? So we are going to incorporate a ordinary for-profit kind of company. Do we get this? Yeah? Chalo. तो कितना steps है? 8. कितना submissions है? 7 submissions. 8 steps, 7 submissions. Okay. Chalo. Let us start. The first step which you need to know is the type of the company. The first step is to know the type of the company. ठीक है, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, तो उसमें से मैं कौन से टाइप का कंपनी बनाना चाहता हूं। तो आप मुझे बोलो बेटा, कितने टाइप का कंपनी आप बना सकते हो? 17 टाइप ऑफ कंपनीज। करेक्ट है? करेक्ट है ना? Terrific. Yes, sir? No, sir? Can't say. अरे बोलो, 17 टाइप का कंपनी बनेगा क्या? ये गधेड़ा नहीं बनेगा। कौन सा टाइप का कंपनी बन सकता है? बोलो। हाँ, ये तुम इंस्टाग्राम के लिए रखो बेटा। हाँ, यहां पर मुझे आंसर बोलो मुंह से। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। टेरिफिक है ना? बस 17 कंपनी पढ़ाया गांडा, तुम साला 2 कंपनी बनाता है बस। हाँ, स्मॉल कंपनी है ना? स्मॉल कंपनी है, घोगे
स्मॉल कंपनी कैसा बनाएगी बेटा? यू सेटअप अ प्राइवेट कंपनी, फिर कैपिटल और टर्नओवर से वो स्मॉल हो जाएगा। और कुछ? ओबीसी, फाइन, प्राइवेट, पब्लिक, ओबीसी और होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। रॉन्ग आंसर है ये। दीदी, सॉरी, निधि। ओके, निधि कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी, निधि। ओके, और गवर्नमेंट कंपनी। एक्सीलेंट। आज सुबह को मैंने बोला था गांडा, यू कन्वर्ट योर सेल्फ इंटू, आज सुबह का बात है ये, गजनी प्रो मैक्स के भी ऊपर कुछ है तो तू वो है बेटा। आज सुबह मैंने बोला यू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एंड कन्वर्ट इनटू गवर्नमेंट, बोला कि नहीं? क्या पता सर, आप तो बोलते रहते हो। सुनो, पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी, दीदी, आई मीन निधि, और कैन यू इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन 8 कंपनी? यस, यू कैन इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन 8 कंपनी। और होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट, फॉरेन कंपनी। एक बैच में बच्चा बोला लेट्स इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अगर तू बोला फॉरेन कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और फिर भी उसको फॉरेन कंपनी बोला बेटा, तो आपकी अकल की मैं दाद देता हूं बेटा। ये गधेड़ा, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी इन इंडिया? और अगर इनकॉर्पोरेट कर लिया तो फॉरेन का डू वी गेट दैट? थोड़ा लॉजिक है ना बेटा दुनिया में। हाँ, पर तेरे आंसर्स में नहीं है। सुनो तो बेटा, हाउ मेनी कंपनीज कैन यू इनकॉर्पोरेट अब तक? पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी, निधि एंड सेक्शन 8, और कोई हो जाए पीएफआई। बिंदास। बोलो, है कोई और? माइकल लाल या माइकी लाली जो ये आंसर दे दे? बोलो बेटा। अदर ऑल कंपनीज आर मियरली अ स्टेटस, इट्स ओनली अ स्टेटस बेटा, जो इनकॉर्पोरेट नहीं होएगा। यू कैन नॉट गो टू द आरओसी एंड से होल्डिंग कंपनी बनाने का है, नहीं बना सकता है बेटा, बिकॉज होल्डिंग कंपनी तब बनेगा जब तू किसी का कैपिटल होल्ड करेगा। एसोसिएट कंपनी नहीं बना सकता। यू कैन मेक ओनली 5 टाइप ऑफ कंपनीज। विच 5? पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी, निधि, सेक्शन 8. That's it. These are the only 5 type of companies which can be ever incorporated as a company. Rest all are merely a status. A clear है? All of us done. तो मेरा first step है to decide which type of company. Done. Okay. अब आगे क्या करने का? The second step says it is preliminary requirement regarding the first director. फिर से बोलते हैं बेटा, preliminary requirement regarding the first director. थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। What do you mean by first director? Promoter appointed by. गजब इंग्लिश है बेटा तुम्हारा। अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर। समझ गया बेटा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी पढ़ा है थोड़ा। ठीक है, और कुछ? फर्स्ट डायरेक्टर होता कौन है? चलो, अपॉइंटेड बाय प्रमोटर, और प्रमोटर हिमसेल्फ बेटा, काफी लालची है। ओके फाइन। और क्या मतलब होता है फर्स्ट डायरेक्टर का? प्रमोटर हिमसेल्फ, बाय प्रमोटर, अपॉइंटेड बाय, ऐसा। फाइन, ओके। एनीथिंग एल्स? क्या क्या क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर और बिंदास। ट्राई करो बेटा, तुम वैसे भी गलत आंसर ही दे रहे हो। हाँ बोल बेटा, बोल। एमओए या एओए में लिखा होगा, फाइन। आर्टिकल्स में लिखा हो सकता है, राइट, वेरी वेल। और कुछ? फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है जो लाइफ में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बना है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो कंपनी का फर्स्ट, ओके, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल बेटा। ओके, तो सुनो, अगर आप कंपनी के फर्स्ट थे बेटा, ओके, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट डायरेक्टर थे बेटा। Leave your expectations aside for some time. So if you were the first director of the company, meaning you are the director of the company right from incorporation. You are the director of the company right from incorporation, and technically it is always the promoter who appoints the first director. Promoter can also be the first director. Okay, and please remember कि managing director वगैरह जो भी है वो बाद में decide होएगा, पर yeah, they could be named in the articles of association. Do we get that? चलो थोड़ा और discussion है। Director, who can be a director? Any person. Terrific. Who is a major? Who has major नहीं हो सकता है बेटा।
हाँ, हु इज अ मेजर, हाँ, और सॉरी, Not इंडिया not ओनली committed इंडिविजुअल crime. कैन अ कंपनी बिकम अ डायरेक्टर? अच्छा, मेरे को गलत पता है, सॉरी, हाँ, कैन अ कंपनी बिकम अ डायरेक्टर? नो, ओनली एन इंडिविजुअल, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। और कोई रिक्वायरमेंट? जिसके पास हो DIN नंबर होएगा। ए चमन, DIN में एन इज नंबर। अरे यार, हाँ, और कुछ? डिजिटल सिग्नेचर, पूरा बोलना, डिजिटल सिग्नेचर होना कंपलसरी है सर। ऐसा फर्स्ट डायरेक्टर के पास तो होना चाहिए ना सर, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल ना सर, तो होना चाहिए, है ना? बोलो, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डायरेक्टर बनने का? यार कम ऑन, अनपढ़ गवार चलेगा? हाँ हाँ बोलते हैं, बिंदास चलेगा बेटा, एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वही मजा है बेटा डायरेक्टर बनने का। तो सर हम CA क्यों बन रहे हैं, हम सबको डायरेक्टर बनाओ आप, है ना? ऐसा नहीं होता है बेटा, उसके लिए स्किल सेट चाहिए, उसके लिए स्किल सेट चाहिए। यू ओनली हैव टू बी अ इंडिविजुअल, यू शुड हैव अ DIN। क्या होता है DIN? DIN नंबर, ओके। तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्हाट इज दैट? रेज योर हैंड एंड आंसर एनीवन। DIN नंबर क्या होता है? अलग पहचान, क्या बात है बेटा, ओके। और कुछ? Every director is given a specific identity number। काय को? वो रास्ते पे कैसा गाय लोगों के ऊपर ऐसा टैग होता है, वैसा है ना? तो हर एक डायरेक्टर के ऊपर ऐसा टैग होएगा, ऐसा। काय को? सर पहचानने में आएगा ना, और दैट, ओके, टू ट्रेस देयर companies। Guys, please remember DIN or director's identification number is a unique identification number given to every director। वो डायरेक्टर वाइज यूनिक है, because a person can act as a director in multiple companies। A person can act as a director in multiple companies, but there is a limit, there is a limit, और वो लिमिट होता है around 20 companies। The limit is around 20 companies। पर क्या है ना बेटा, वी आर इन इंडिया और ये दिल मांगे मोर बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 के ऊपर और 20 ऐसे बबरा डालते हैं, ओके। तो अगर मैं एज अ पर्सन, क्या कर रहे हैं वहां पे, कुछ तो गिर रहा है, कहां से आ रहा है? मर नहीं जाएगा ना मैं आज, है ना? कोई अलार्म है कि ये आखिरी दिन है लाइफ का, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए बेटा। सुनो, अभी ध्यान दो, बदने दो यार तुम लोग, सुनो अभी। So guys, when you look at a person, there are maximum 20 companies where you can act as a director, but if you are acting as a director of more than 20 companies, तो पता कैसा चलेगा? पता नहीं चलेगा, और इसके लिए हमको ट्रेस करना है यू एज अ डायरेक्टर। दैट्स व्हाई वी आस्क यू टू हैव अ DIN। सो एवरी कंपनी वेयर यू एक्ट एज अ डायरेक्टर, यू हैव टू कोड योर DIN। आपका DIN आपने कोड कर दिया, कंपनी ने वो रजिस्टर कर लिया और ROC में दे दिया। ROC के पास इंडिविजुअल वाइज लिस्ट होएगा, क्योंकि अथर्व अगर है तो ओके, वो मिस्टर अथर्व कितना कंपनीज में डायरेक्टर है, दैट विल बी अ लिस्ट, एंड दैट इज वेयर दे विल ट्रैक यू कि कितने कंपनीज में यू आर एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। डू वी गेट दिस? या तो DIN जो होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज एक्चुअली अ 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। इट्स अ अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जैसे आपका पैन होता है, पैन है ना आप सबका बेटा? हाँ, याद है पैन खुद का? हाँ, ओ याद होना चाहिए गधेड़ा, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल नंबर ऑफ योर लाइफ। पैन और आधार, वो तेरा नंबर याद होना ही चाहिए। दो गाने का लिरिक्स कम याद कर, तू मान मेरी जान नहीं आएगा चलेगा अपने को, तेरे को पैन और आधार खुद का याद होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इन लाइफ। एनीवेज, तो यहां पर बेटा जैसे आपका और मेरा पैन है, वैसे डायरेक्टर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने DIN बनाया हुआ है, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2006। 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। पैन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1976। 1970। पैन क्यों लगाया है? पैन का रिक्वायरमेंट क्या है सर? बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, है ना? इनकम टैक्स, भले तुम्हारा इनकम नहीं है बेटा, पर इट इज फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो तुम जिधर भी दुनिया में जाएगा और अगर इनकम कमाया या खर्चा किया, वो लोग तेरे से पैन मांगेगा, वो लोग तेरे से पैन मांगेगा। फॉरेन ट्रैवल करने का है, कैश भरा 50,000 से ज्यादा, बोलेगा पैन दे। हाँ, क्यों? बिकॉज दे वांट टू लिंक इट एवरीवेयर, दे वांट टू लिंक योर पैन एवरीवेयर, सो दैट दे कैन कैच होल्ड ऑफ के साला ये
पिछले साल पेरिस में था और इनकम में बताते 1.5 लाख रुपया साल का कमाया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग सब लिंक करता है। सो दे वांट योर पैन इज टू ट्रैक योर इनकम, PAN is to track your property, your income and all, and DIN is to track your directorship का status. In how many companies are you acting as a director? कुछ समझ में आता है? It's a 8 digit का alpha numeric code. Do we get this? इसके ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, but it's just a part of my routine show off. ठीक है, कि आपको DIN पता होना चाहिए. It's a 8 digit का alpha numeric code, and if you want to get more details on that, please follow me on Rahul Mukesh Modi Instagram. Okay, सुनिए, अभी यहाँ थोड़ा प्रमोशन करना पड़ता है, सुनो. तो अभी वो DIN होना चाहिए, पर एक बंदे के पास more than one DIN चलेगा, है ना? कि खराब हो गया तो दूसरा काम लगेगा, है ना? बारिश में बिक गया, हाँ, तो दूसरा DIN वापरने का, ऐसा कुछ है नहीं? Can two people share one DIN? अरे मेरा भूल गया, तेरा देना यार, ऐसा नहीं होता है, टिफिन नहीं है. It is one DIN per person for life. That is the only thing perhaps which is for life. Okay? हाँ, तो that is DIN for life रहेगा per person. अच्छा, हर एक के पास होना चाहिए, पर at least one director should have a DSC, digital signature certificate. At least one मैंने बोला. अगर तेरे कंपनी में 10 डायरेक्टर है, एक का DSC है चलेगा, क्योंकि उसी का DSC हम लोग बार बार यूज करने वाला है. पर DIN हर डायरेक्टर का होना चाहिए. डू वी गेट दैट? चल मुझे बोल, ओबीसी का मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट 2, पब्लिक, ये याद रखना है बेटा, बिकॉज दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. मिनिमम 1, 2, 3 विल हैव टू बी देयर फ्रॉम द डे 1 ऑफ द कंपनी. क्लियर? नो वन सेज यस. Right, these are my first 2 points or first 2 steps. First one was deciding the type of the company. The second one is the preliminary requirement regarding the first director. यहाँ तक समझा? चलो अब now we will reserve the name. Now we will reserve the name of a company. What do you mean by reservation of name? Name that you want. बेटा कंपनी का नाम रखना पड़ेगा कि नहीं रखने का? नहीं ना बेटा, रखना पड़ेगा. कंपनी लिमिटेड तो नहीं बोल सकता है तो उसको. They'll have to have a name for the company. वो नाम तू डिसाइड करेगा या कौन डिसाइड करेगा? अब मैं डिसाइड करेगा. तो अपना कंपनी है ब्रो, तो अपना कंपनी का नाम अपन ही डिसाइड करेगा. पर अगर तू कॉपी कैट निकला बेटा, इफ यू आर अ कॉपी कैट, व्हाट डू मीन बाय कॉपी कैट? हाँ, तू चला दूसरों का नाम चिपका डाला. ओके, तूने रिलायंस के स्पेलिंग में कोई चेंजेस करके तुमने बोल दिया ये मेरा कंपनी है, नहीं चलेगा. You have to have a unique name. You have to have a unique name, and that name has to be first put across the ROC. आपको ROC में भेजना पड़ेगा. उन लोगों ने अप्रूवल दिया तो ही वो नाम आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा. Do we get that? All of us, right? So you will submit your application to the ROC. They will reserve a name. They will reserve. अच्छा, is that possible कि आपने जो भी नाम सजेस्ट किया है, हाँ, कोई और कंपनी का ऑलरेडी है? Is that possible? It's just like your Insta user ID. This already exists. हाँ, फिर तुम अपना नाम लिखेगा, नीचे अंडरस्कोर डालेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ. हाँ, ये कॉमन है अपना. हाँ, दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, या फिर ऑफिशियल. तू कैसा ऑफिशियल लिखता है बे? तू तेरा नाम में खुद ऑफिशियल लिख रहा है. ब्लू टिक क्या महंगा पड़ता है ना भी ट्विटर का. तो ऐसा हो गया है. द पॉइंट इज कि ऐसा बहुत होएगा कि तुमने नाम सजेस्ट किया और वो ऑलरेडी इज टेकन बाय सम और अदर कंपनी. व्हाट विल यू नीड टू डू? Resubmit beta. You have to resubmit the names back to the ROC, and this will go on and on until you actually get a unique name. Until you actually get a unique name. पर तुम्हारा नाम इतना भंगार तुमने सोचा है कि किसी ने ये लेने का सोचा ही नहीं था बेटा. Then you will immediately get that name approved from the ROC. Once your name is approved by the ROC, you get 20 days. You are a new company. You are a new company. You are not yet a company. You are at application stage. Okay? तो आपने कोई नाम सजेस्ट किया है, ROC ने बोला डन. ROC ने बोल दिया डन. दिस नेम इज अलॉटेड टू यू. अभी आपको 20 डेज मिलेगा. ये 20 डेज में क्या करना पड़ेगा? बाकी का जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ना, वो आपको कंप्लीट करना है. All the pending documentation has to be completed within the next 20 days. That's the time limit given to you once the name is registered against your application. Okay? पर 20 डेज के साथ साथ आपको एक और चीज याद रखना है, वो ये है कि गाइस एग्जिस्टिंग कंपनीज होता है ना, एग्जिस्टिंग कंपनीज, उनका भी नाम चेंज होता है. डू यू अग्री? एग्जिस्टिंग कंपनीज होएगा बहुत सारा, उनका भी नाम तो चेंज होएगा ही ना, राइट? मेनी कंपनीज चेंज देयर नेम्स. ओके, सम फॉर अमालगमेशन, सम फॉर एनी अदर रीजन, नाम बदलते रहते हैं. उनको भी सेम प्रोसीजर करना है.
उनको भी आरओसी में नया नाम देना है और वो आरओसी एक्सेप्ट करेगा तो ही वो नाम उन लोग यूज कर सकता है। पर अगर आप न्यू कंपनी है, आपका नाम एक बार रजिस्टर हो गया, इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर 20 डेज। पर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और आपने कोई नया नाम सोचा है, तो वो अगर रजिस्टर हो गया देन दैट इज वैलिड फॉर 60 डेज। एक मिनट सर, फिर से, न्यू कंपनी है, द नेम इज वैलिड फॉर 20 डेज, एग्जिस्टिंग कंपनी है, नेम इज वैलिड फॉर 60 डेज। सर ऐसा भेदभाव क्यों 20 और 60 डेज? सुन बेटा, जो एप्लीकेशन स्टेज पे है ना, तो तुझे किसी का अप्रूवल वगैरह लेना नहीं है। जो लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को, वो लोग नहीं डिसाइड किया होगा। पर वंस यू आर अ कंपनी, आप नाम बदल रहे हो, तो आपको अपने मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डू यू अग्री विद दैट? या और तुमको क्या लगता है, मेंबर उधर नीचे कंपनी के नीचे टपरी पे बैठा रहता है ना? तो तुमने ऐसा बुलाया और वो आ जाएगा और सीधा आगे रेजोल्यूशन पास करेगा। ऐसा तो नहीं होएगा ना। दैट्स व्हाई वी गिव यू 60 डेज कि जो भी नाम है, आप एक बार अपने मेंबर्स का जनरल मीटिंग बुला लो, उनमें अप्रूवल ले लो, देन यू कंक्लूड द प्रोसीडिंग्स। डू वी गेट दैट? सो न्यू कंपनी का नेम विल बी वैलिड फॉर 20 days और एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम विल बी वैलिड फॉर 60 days, फॉर 60 days। आर वी क्लियर ऑल ऑफ अस? ओके, मान लो नाम रिजर्व हो गया, मान लो नाम रिजर्व हो गया, कितने दिन में सब करना पड़ेगा? वी आर अ न्यू कंपनी, कितने दिन में? 20 days। नाम रिजर्व होने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बेटा? नाम रिजर्व होने के बाद फर्स्ट स्टेप शुड बी ड्राफ्टिंग MOA एंड AOA, शुड बी ड्राफ्टिंग ऑफ MOA एंड AOA। क्यों ड्राफ्टिंग ऑफ MOA एंड AOA बेटा? क्योंकि MOA AOA में नाम डालना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? नेम मैंने रिजर्व किया क्योंकि MOA AOA में नेम के बिना आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई हैव टू ड्राफ्ट माय MOA एंड AOA। तुम मुझे बोलो MOA AOA कहां से मिलेगा? ROC, गूगल, गूगल से मिलेगा। लीगल एडवाइजर से, खुद कोई काम ही नहीं करना है। नहीं मतलब उनको पैसा दे रहे तो उससे हाँ वसूल करेंगे। MOA AOA MCA का वेबसाइट बोलता है। MOA AOA कहां से मिलेगा? टेबल A to E, ओके, एंड F2J। ये कौन सी भाषा बोल रही है ये मोहतरमा? कौन सी भाषा बोल रही है? ए गांडा, MOA AOA यू विल फाइंड फ्रॉम Schedule 1। नोटबुक मत करो अभी, नोटबुक निकालो, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाओ। अगर वहां पर Schedule 1 में MOA AOA नहीं लिखा है बेटा, तो बुक जला दो। देखो ये चमन मिला क्या? लिखा है ना यार Schedule 1 MOA, तो तुम कहां से मिलेगा? MCA वेबसाइट। ए Schedule 1 MOA AOA कहां से मिलेगा गांडा? Schedule 1। एंड व्हाट शी सेड वाज एक्सट्रीमली करेक्ट। जो आपका MOA AOA होता है Schedule 1 में, देयर आर 10 टेबल्स, देयर आर 10 टेबल्स। हाँ तो सर उसका क्या? हाँ तो सुनना मैं बोलता है, वो जो 10 टेबल्स है ना, दे आर डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ MOA एंड AOA। How different format? Because they are dependent upon the type of the company. Company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company, etc. Do we get that? तो MOA जो है टेबल A से लेकर टेबल E 5 होता है। E होता है बेटा, A 5, ओके, और 5 होएगा AOA, तो वो 6th से चालू होएगा, वो होएगा F से लेके, वेरी इंप्रेसिव बेटा, तो 10th नंबर इज J। ओके, तो A to E MOA और F to J AOA। हम लोग कौन सा कंपनी बना रहा है? ऑर्डिनरी कंपनी बना रहा है कि नहीं? तो विल दैट बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी? शेयर्स, ऑब्वियो, वी आर मेकिंग अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो वो कंपनी का जो MOA है दैट इज टेबल A, और वो कंपनी का जो AOA है दैट इज टेबल F। क्लियर है? तो व्हाट विल वी रिमेंबर? MOA AOA कहां से मिलेगा? टेबल A, टेबल F ऑफ Schedule 1। फिर से कहां से मिलेगा? टेबल A, टेबल F ऑफ Schedule 1। यार वी क्लियर? श्योर? तो मैंने बना दिया मेरा MOA एंड AOA फ्रॉम टेबल A, टेबल F ऑफ Schedule 1।
इज दिस डन? हाँ, तो 4 स्टेप हो गया बेटा मेरा. फर्स्ट क्या था? हाँ, टाइप ऑफ कंपनी, वेरी इंप्रेसिव. सेकेंड, preliminary requirement regarding the first director. Third, reservation of the name. Fourth, drafting of MOA and AOA. Is that clear? Right? चलो, तो ये 4 के बाद मेरे पास कितना टाइम है? 20 days. ये याद रख. हाँ, ये तुम घड़ी मत देखो गांडा कितना टाइम है के लिए. सुनो सुनो अभी. हाँ, तो वी हैव 20 days टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी. उसके लिए हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 5. तो 5th स्टेप में वी डू व्हाट? सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी. फिर से सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी. राइट? अभी कौन से आरओसी में जाने का? कोई भी. The state, we call that as jurisdictional ROC. फिर से jurisdictional ROC. What do you mean by the word jurisdiction? Jurisdiction, region, within the region. Jurisdiction શું છે? Jurisdiction, इलाका. कुत्तों का कैसे इलाका होता है बेटा, वैसा. दैट इज अ इलाका. ओके. एरिया ऑफ ऑपरेशन. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ ऑपरेशन. वेट मैं सब लिखा बेटा, डोंट वरी. एरिया ऑफ ऑपरेशन. ज्यूरिसडिक्शन इज नथिंग बट एरिया ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, चलो पहले हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इसको टेक्स्ट बुक में से, पहले 4 पॉइंट्स को, फिर हम लोग आगे जाएंगे. चलिए आ जाइए पेज नंबर 2.4, 2.4. Is everyone there? Right? Come on, let's start reading that. Incorporation of Companies, section number 7. Read with. Companies Incorporation Rules 2014. बेटा आपको ये रूल्स के बारे में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन शो ऑफ बेटा. ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? सेक्शन नंबर 7. ओके, चलो रीड. प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन. कितना स्टेप्स? 8 स्टेप्स, 7 सबमिशंस. डन. Step number 1. Selection of type of company. Promoters of the company may select the type of company as they wish to form themselves. Check करो कितना company select हो सकता है? 5. Public, private, OPC, Section 8 और निधि. All other type of companies are only status and cannot be incorporated. Do we get that? All of us? Chal. Second point. Preliminary requirement regarding the first director. Every director to have a DIN. What is that? Director's Identification Number. All right. At least one director to have a DSC. What is DSC? Digital Signature Certificate. यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स मुझे लिखना है आपके लिए, जो मैं लिख रहा हूं. ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर. Second, no educational qualification. Third, minimum directors. OPC में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3. Done, guys? Yeah, this is something that you should write in the preliminary requirement regarding the first director. Are you done? Chalo aage. Step number 3. Reservation of name. Any of the promoters should apply to the ROC regarding the reservation of name. ये थोड़ा amended part है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो मेरे साथ.
An application for reservation of name shall be made by using web service Spice Plus. ये स्पाइस का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? फाउंडेशन में मसाला नहीं सुना है बेटा? हाँ, पढ़ो. Simplified pro forma for incorporating a company electronically, that is under form number INC 32. Spice Plus in form number INC 32. एक मिनट, ये नया फॉर्म आ गया. Yes or no? Reservation of name के लिए Spice Plus INC 32. एक मिनट, यू आर राइटिंग दैट इन द समरी. पहले पॉइंट पूरा पढ़ लो ना, फिर लिखो. जस्ट रीड दिस कंप्लीटली बेटा. Spice Plus form in INC 32 and for change of name by using web service run reserve unique name. एक मिनट, reserve unique name ये किसके लिए है? ये change by existing company. एक मिनट, मैं न्यू कंपनी है, मैं क्या फाइल करेगा? Spice Plus INC 32. मैं एग्जिस्टिंग कंपनी है, चेंज मारने का है, रन रिजर्व यूनिक नेम. दोनों में आपको एक कॉमन चीज करना है बेटा, 1,000 रुपये का फीस देना पड़ेगा. मैक्सिमम 6 नेम्स, मतलब एक बार मैक्सिमम 6 नेम्स यू कैन गिव. सर अगर वो 6 का 6 नाम एग्जिस्टिंग है तो क्या वापिस फाइल करो प्लस 1,000 रुपया. हाँ, 1,000 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा. तो अगर तुम बेटा फुल कॉपी कैट है तो हो सकता है 10-20 हजार इसमें चला जाएगा. दैट इज पॉसिबल. हाँ, ओके फाइन. ये तुमको समझा? न्यू कंपनी स्पाइस प्लस INC 32, एग्जिस्टिंग रन रिजर्व यूनिक नेम. ये कुछ समझा ऑल ऑफ अस? या चलो आगे, लेट्स रीड दैट. द रजिस्ट्रार मे on the basis of the information and documents furnished along with the application reserve the name for a period of 20 days from the date of approval, provided that in case of an application for change of its name by an existing company, registrar may reserve the name for a period of 60 days. ये बोला कि नहीं दोनों? New company 20, existing company 60. After 20 or 60 days, if documents for incorporation are not filed with the ROC, the reservation made by the registrar shall lapse automatically. What do you mean by lapse? Cancel. अगर मान लो कि नितिक्षा हैज फाइल्ड अ पर्टिकुलर नेम और उसने 20 दिन के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं किया, कैन आई on the 21st day get the name which was reserved against her application? Yes, that's possible. Clear? Now we can go to your forms etc and write that fast. Spice Plus INC 32 is for new company or run is for existing company. Yes. Yeah. No, I'll tell you. The point is that you would have seen a particular post on Instagram, Bisleri, Bilseri, and all that. है ना? हाँ, so similarly there are Adidas, Abidas, and all that. The fact of the matter is they are not companies. They are not companies. The only company out of that is Bisleri, which is a registered company. Rest, do you think they are working as incorporated entities? No. रूरल इंडिया में जब भी तुम जाएगा एक्वाफिना का एक्वामीना मिलता है बेटा वहां पे. हाँ, ऐसा मिलता है. हाँ, तो वो सब बेटा लोकल बॉटलिंग प्लांट्स बना के रखा है वो लोगों ने, और एक अनरजिस्टर्ड लेवल पे वो लोग काम कर रहा है. यू विल नेवर सी देम इनकॉर्पोरेटेड एज अ एंटिटी. अगर इनकॉर्पोरेटेड होता तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसा बेच पाएगा ना. You get that? But yeah, that's correct. What you are saying is correct, but they are not incorporated, and that's the reason we can't trace them. That's how it works. Okay. चलो, let's read this. ये तुम लोगों ने लिखा वो Spice Plus INC 32 लिखा. अच्छा, रन लिखा, रन. चल, let's read fourth point. Fourth. Preparation of MOA and AOA. Drafting of MOA and AOA is generally a step subsequent to the reservation of name made by the registrar. MOA and AOA shall be in respective forms as specified in Schedule 1. कौन सा फॉर्म है अपने लिए? Check it out. नीचे ही है बेटा. Table A for MOA, Table F for AOA. Just make an arrow over there. चलो, read that further.
These two documents are basically the charter and internal rules and regulations of the company. Therefore, it must be drafted with utmost care and with the advice of experts. And the ancillary clause for attainment of the main object clause should be drafted in a very broader sense. ये जो last paragraph हमने पढ़ा बेटा, that's your depiction of BCom exams. मतलब क्या? मतलब ये point में लिखने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने आंसर बड़ा कर दिया बेटा. यहाँ पे तुमको समझता है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना था, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एंड एओए, तो उसमें मुझे जो भी लिखना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा. तो मैं आंसर को बताऊं कैसे? तो मैंने लिखना चालू कर दिया, व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए, फिर मैंने लिखा इट इज अ चार्टर, इट इज अ इंटरनल रूल्स, वो सब बंडल है बेटा. यहाँ पे कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टीबीएच सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ रेलेवेंट है यहाँ के. ये कुछ समझा पीपल? हाँ, तुमको लिखना है तुम लिख सकता है बिंदास आंसर में, बट रेलेवेंट नहीं है ये पॉइंट के लिए. ओके चलो, दिस माय स्टेप नंबर 4. क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एंड एओए. ये 4 स्टेप समझा? श्योर पीपल? एंसिलरी मीनिंग रिलेटेड क्लॉज. एंसिलरी का मतलब होता है रिलेटेड. चाहिए तो लीगल वर्ड्स में लिख लीजिए, एंसिलरी क्लॉज, रिलेटेड क्लॉज. एंसिलरी मतलब रिलेटेड. चलो गाइस, डन. लिखा आप लोगों ने एंसिलरी क्लॉज. चलो नाउ लेट अस नाउ गो ऑन टू द 5th स्टेप. और 5th स्टेप क्या है बेटा? सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कितने दिन में करना पड़ेगा? 20 डेज. कितने दिन में करना पड़ेगा? 20 डेज. चलो लेट अस गो अ बिट फर्दर. स्टेप नंबर 5, एकदम ध्यान से. अभी देयर आर लॉट ऑफ सबमिशंस ओवर हियर. कितना टोटल सबमिशंस है? 7. वी हैव 7 सबमिशंस इन ऑल. एकदम ध्यान देना बेटा यहाँ पे. चलो स्टेप नंबर 5, filing of document with the ROC. An application shall be filed with the ROC within whose jurisdiction. Jurisdiction, जाओ अपने legal words में. Jurisdiction का मतलब होता है area of operation. Jurisdiction का मतलब होता है area of operation. Within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. तो अगर मैं ओपीसी हूं बेटा, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है अंडर फॉर्म नंबर INC 2. और अगर मैं एनी अदर कंपनी हूं तो INC 7. कितना सबमिशंस करना है? 7. इन ऑल 7 सबमिशन. ओपीसी के लिए INC 2, एनी अदर कंपनी के लिए INC 7. राइट. चलो, सो अगर मुझे INC 2 और INC 7 याद रखना है, व्हाट इज दैट? Submission of documents by OPC INC 2. Submission of documents by any other company INC 7. चलो let's read that. कितने दिन में करना है? 20 days. 20 days of name reservation. पढ़ो. First, MOA and AOA duly signed by all subscribers to the memorandum. But what do you mean by subscribers to the memorandum? जिस टाइम पे कंपनी बनाया था, जो शेयर होल्डर्स था, बेसिकली बेटा दे आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स. फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल बेटा. ओके, so they are the first shareholders of the company. So they were the shareholders right from incorporation of the company. तो जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होएगा और मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट होएगा, तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन मुझे क्या करना है? एमओए और एओए के ऊपर साइन लेना है. किसका? सब्सक्राइबर्स का. सब्सक्राइबर्स कौन होता है बेटा? फर्स्ट शेयर होल्डर. चलो थोड़ा एक ट्राई करते हैं. ओपीसी में कितना सब्सक्राइबर्स होएगा? 1. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 7. तो सातों के सातों लोगों का बेटा साइन वगैरह आएगा ऑन द एमओए एंड एओए. दैट विल बी सबमिटेड टू द आरओसी. सो द फर्स्ट स्टेप इज अ साइंड कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए साइंड बाय ऑल द subscribers to the memorandum. Subscribers to the memorandum are the first shareholders of the company. ये clear है? Yes? चल थोड़ा आगे. That's my first submission. Second, एकदम ध्यान से, declaration in form number INC 8.
by advocate, CA, CS and CWA. CWA कौन है? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बेटा. ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट बोल सकते हैं आप. इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्लस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी. ये सेक्रेटरी कौन है? नहीं नहीं बेटा, वो कंपनी सेक्रेटरी है, वो आपकी सेक्रेटरी नहीं है बेटा. हाँ नहीं, दोनों सेम नहीं होगा बेटा. इन प्रैक्टिस है वो. जो ऊपर वाला CS है ना, दैट इज इन प्रैक्टिस, मतलब वो बाहर वाला है. और ये जो सेक्रेटरी है वो आपके कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है. दोनों सेम नहीं हो सकता है, राइट? पॉसिबल ही नहीं है. ओके, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर. गो गो गो, लीगल वर्ड्स. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर. और इंसिडेंटल मतलब आफ्टर, है ना? ये इंसिडेंटल, related to. Incidental is related to. Precedent is prior. Incidental is related to. Or incidental thereto have been complied with. Have been complied with. जरा पढ़ो ये पॉइंट और एक्सप्लेन करो. कम ऑन, फास्ट. बोलो गाइस, व्हाट इज दैट पॉइंट टॉकिंग अबाउट? एक डिक्लेरेशन है. INC 8 is a declaration. Okay, declaration regarding what? के इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो भी रूल्स है, वेदर दे आर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल, मतलब उसके पहले का है या रिलेटेड है, सब कुछ कंप्लाई हुआ है. ये हम लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, पर डिक्लेरेशन साइन कौन कर रहा है? हाउ मेनी पीपल आर साइनिंग? हाउ मेनी पीपल आर साइनिंग? बेटा ओनली 2. Only 2 people are signing, one outsider, one insider. I don't know if you got that. One outsider, one insider. Sir, ये outsider कौन है? Advocate, CA, CS, cost accountant in practice. जो कोई outsider होएगा वो साइन करके देगा. And second कौन है? Director, manager और secretary. तीनों में से कोई भी एक. तो this is a declaration signed by, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं बेटा, I'll just write that. It will be signed by one outsider. जो ऊपर है वो outsider है. Do you agree? Right? और जो नीचे है ये, this is one insider. Signed by one outsider plus one insider. और वो declaration क्या है? कि incorporation के related जो भी requirements है, including precedent and incidental matters have been complied with. It done? तुमको समझा? फर्स्ट क्या था? साइंड कॉपी ऑफ MOA एंड AOA साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स. एंड इनकॉर्पोरेशन, सेकंड पॉइंट क्या है? INC डिक्लेरेशन बाय वन आउटसाइडर प्लस वन इनसाइडर के इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड इncidental मैटर्स हैव बीन कंप्लाइड विथ. ये समझा ऑल ऑफ अस? थर्ड पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ो. डिक्लेरेशन इन INC 9, सब्सक्राइबर्स plus all first directors. First point was signed by all subscribers. Second was signed by one outsider, one insider. Third is signed by subscribers plus all first directors. No conviction in the preceding 5 years of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, or guilty of any fraud or क्या है वो? Misfeasance. Misfeasance. We'll come to that, don't worry. Misfeasance or of any breach of duty to any company under this act. Please read that. एक बार पढ़िए और हमें समझाइए. Nine. That is the declaration which you are giving over here. That कोई भी convicted नहीं है. We'll talk about that. Wait. People. अच्छा मुझे बोलो, what do you mean by the word convicted? No conviction बोला है, convicted.
का मतलब क्या है? अक्यूज्ड, चार्ज्ड, बोलो। ऑफेंस, ऑफेंस नहीं किया है, आइला, वेरी गुड बेटा। कन्विक्टेड, यू आर कन्विक्टेड। guilty of, कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी, कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी। दो चीज होता है बेटा, कन्विक्टेड, अक्विटेड। कन्विक्टेड, अक्विटेड। कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी, कन्विक्टेड मतलब आप मुजरिम है, मुजरिम, ओके, या फिर आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, राइट? डोंट राइट ऑल ऑफ दिस। कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी, अक्विटेड मतलब नॉट फाउंड गिल्टी। अक्यूज्ड अलग होता है, अक्यूज्ड का मतलब होता है मुल्जिम, और कन्विक्टेड का मतलब होता है मुजरिम। उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो हियर आर यू अ मुल्जिम और अ मुजरिम? मुजरिम बेटा, यू आर अ मुजरिम, फाउंड गिल्टी, यू आर फाउंड गिल्टी। और कितने साल का कन्विक्शन चेक कर रहे हैं लोग? 5। पिछले 5 साल में कोई भी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके पहले का हुआ तो चाल से, प्लीज एंजॉय। तो यहां पर बेटा ये पॉइंट हमको एक सीख देता है कि अगर आपको कंपनी बनाने का है तो आपके साथ पिछले 5 साल में कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। उसके पहले तू एक खूंखार क्रिमिनल था बेटा, तो भी चलेगा, बिकॉज आई एम चेकिंग योर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओनली प्रीसीडिंग 5 years. डू वी गेट दैट? अच्छा चलो एक बात बोलते हैं, ओके? मान लो दैट वी हैव अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेट अस से वी हैव ध्रुवी। ध्रुवी के ऊपर एक केस चालू है, केस चालू है, एंड शी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। विल दैट बी पॉसिबल? चालू है केस, विल शी बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? यस, नो, कांट से। अरे बोलो, द आंसर इज यस। अरे क्यों यस? अरे नॉट कन्विक्टेड येट, येट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज येट। तो अभी वो अक्यूज्ड है, तो ध्रुवी जी एक मुल्जिम है बेटा। एज ऑफ नाउ शी इज नॉट अ मुजरिम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और यहां पर पॉइंट क्या है कि यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड, शी वाज नॉट कन्विक्टेड। See, read the law as it wants you to read it. Okay, क्या बोला? कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, बोल दिया करेक्ट, मैं कन्विक्टेड का है, मेरे ऊपर तो केस चालू है। हाँ, कन्विक्ट होएगी तब का बात तभी देखेंगे, अभी क्या है, अभी तो कंपनी बनाने दो। आई डोंट नो इफ यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो अगर केस चालू है, शी कैन वेरी वेल मेक अ कंपनी। डू वी गेट दिस? नो वन सेज यस। Okay, so you should not have been found guilty in the preceding 5 years for any fraud, including misfeasance. Including what? Misfeasance. ये misfeasance का मतलब होता है अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना। What is that? अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना। Wait, don't write that. That is abuse of power. तुम ये नाजायज वाजायज वो लिख के मत आओ बेटा पेपर में। ओके, मिसफीसेंस का लीगल वर्ड्स में लिख लो अब्यूज ऑफ पावर। पर जब भी किसी को एक्सप्लेन करो तो बोलोगे अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना, अब्यूज ऑफ पावर। डू वी गेट दैट? तो बड़ा ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ऑल सब्सक्राइबर, ऑल फर्स्ट डायरेक्टर। पता चला साला मेंबर में से 4 लोग अभी अभी जेल से बाहर आए हैं, वो भी बेल पे, ओके? और 2-3 के ऊपर तो मर्डर का चार्ज चालू है। ऐसा सब में नहीं चाहिए बेटा। नो कन्विक्शन इन द प्रीसीडिंग 5 years. इज दैट क्लियर? 5 साल के पहले का बेटा सब माफ है, तेरे को सब माफ है, ओके? सो 5 years के प्रायर अगर आपने कोई कांड किया है तो अपन चाल से, बट इन द प्रीसीडिंग 5 years देयर शुड नॉट हैव बीन एनी कन्विक्शन अपॉन यू। इज दैट क्लियर? That's why declaration number 3. First क्या था? Signed copy of MOA AOA by all subscriber. Second क्या है? INC 8. 1 outsider, 1 insider. Third क्या है? INC 9. All subscribers, all first directors. Is that clear? Yes sir. चलो, let's read the D point. D. AIR 12. Oh sorry. DIR 12. क्या आदत हो गया बेटा AIR का? Anyways, पढ़ो। So DIR 12, DIR stands for directors. DIR stands for directors. Directors is a chapter of final CA बेटा, वो अभी नहीं है आपको, पर उसका फॉर्म है यहाँ पे। Directors, form number 12. All subscribers, all first directors. PAN,
and passport. What is PAN? कोई बोला पर्सनल अकाउंट नंबर, चमाट मारे हमें. परमानेंट अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट नंबर? परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है ना, देखा है पैन खुद का? हाँ, वेरी इंप्रेसिव बेटा. एड्रेस लिखा होता है? नहीं. दैट इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. दैट इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. पासपोर्ट देखा है बेटा खुद का? हाँ, के पुलिस के पास जब्त है. ओके, हाँ, तो पासपोर्ट होएगा ना तेरा. दैट्स योर प्रूफ ऑफ एड्रेस. पासपोर्ट इज योर प्रूफ ऑफ एड्रेस. तो इस पे एक बैच में बच्चा बोला सर रेशनिंग कार्ड चलेगा? बेटा नहीं चलेगा. यू आर इन कंपनीज लॉ बेटा. तू कोई राशन में गेहूं चावल लेने नहीं जा रहे. सो हियर यू हैव टू टॉक अबाउट पासपोर्ट, राइट? पैन क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. पासपोर्ट क्या है? प्रूफ ऑफ एड्रेस. लिखो, राइट इट ओवर देयर. ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल फर्स्ट डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा पैन एंड पासपोर्ट. पैन होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस. वहीं पे लिखो बेटा टेक्स्ट बुक में. आधार कार्ड भी चलेगा. सोच ही ऐसी है बेटा. कॉलेज आईडी मत लिख के आना. डन. या ये मैंने क्यों यहां पे पासपोर्ट लिखा है पता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट है कि जितना भी डायरेक्टर्स है उनका पासपोर्ट आरओसी में होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बहुत लोग बेटा भागे लायक कंपनी में कांड कर करके बहुत सारा प्रमोटर डायरेक्टर भाग चुका है. इसके लिए उनका पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट पर भी नंबर होता है बेटा. घर पे जाएगा ना तो देख लेना, पासपोर्ट के ऊपर परफोरेशन नंबर होएगा बेटा एक. ओके, पासपोर्ट के ऊपर एक परफोरेशन में नंबर लिखा होता है. दैट्स योर पासपोर्ट नंबर, राइट? तो उससे आपको ट्रेस करेगा. क्योंकि तू अगर कहीं बाहर गांव चला गया बेटा, ओके, रिक्शा पकड़ के नहीं बेटा, फ्लाइट पकड़ के, तो तुझे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो विल कैच होल्ड ऑफ यू बाय अ पर्टिकुलर पासपोर्ट. पर अगर आप शातिर है बेटा और आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट है बेटा, यू हैव अ मल्टीपल पासपोर्ट डिसऑर्डर, ओके, तो इन दैट केस तेरे को पकड़ना इम्पॉसिबल है. दैट्स योर खूबी बेटा. ओके, पर यहां पर आपको एक पासपोर्ट का डिटेल देना पड़ेगा. प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये लिखा गया. नो वन सेज यस, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो DIR 12. DIR 12 में बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है. एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एंड नाउ फर्दर फर्स्ट डायरेक्टर्स टू गिव देयर कंसेंट प्लस interest in other firm or body corporate. What do you mean by consent? कबूल है, कबूल है, कबूल है. Willingness to act as a director. तो अगर मैंने आपको मेरे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, आपको पता तो हो कि तू मेरे कंपनी का डायरेक्टर है, राइट? तो आपके पास से मेरे को एक कंसेंट का लेटर लेना पड़ेगा. ओके, दैट इज अंडर DIR 12 प्लस योर इंटरेस्ट इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट. इसका मतलब क्या है? किसी और कंपनी में भी अगर मैं डायरेक्टर है और कुछ इंटरेस्ट इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट. यहां पर एक बहुत टिपिकल पॉइंट है बेटा, मेंबर हो, पार्टनर हो, और कोई भी फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट से, राइट? बट हियर मेजरली व्हाट वी आर लुकिंग एट, ओके, आई टेल यू, देन यू सी इफ यू कैन मेक अप एन एग्जांपल. हियर आई नीड, यहां पे I want disclosure of, rather, disclosure of conflict of interest. इसका मतलब क्या है पता है? Let us say you are being appointed as a director. You are being appointed as a director on the board of Marico या फिर any other FMCG company. Let's say Patanjali. You are appointed as a director on the board of Patanjali Ayurveda. Okay, and similarly at that same point of time you also get appointment to be a director on the board of Hindustan Unilever Limited. Can you accept that? Can you accept that? नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? कंपीटिंग बिजनेस है यार. इट्स अ सिंपल पॉइंट. तुम लोग कंपीटिंग बिजनेस में एक साथ में डायरेक्टर नहीं बन सकता है, बिकॉज बेटा यू आर अ डायरेक्टर. ट्रेड सीक्रेट्स होता है, राइट? वो अगर तुमने इधर उधर लीक कर दिया तो कंपनी का कबाड़ा हो जाएगा. That's why I need your disclosure on conflict of interest. Do we get that? Can I be a director of multiple other companies? Yes.
That's okay, but I should not be a director in any competing business so as to avoid the conflict of interest. ये तुमको समझा? ये तुमने लिखा? या प्लीज लिखो बेटा. Disclosure of conflict of interest. It done? हाँ बोलिए. That's how it happens, no? Later on is a different point, but that you can and that you should also for money. But yeah, you can do that. वरना बेटा धंधे में प्रोग्रेस कैसे होएगा आपका, राइट? पर सेम टाइम पे नहीं होनेगा. जनवरी टू जून यू आर हियर, जुलाई टू दिसंबर यू आर देयर. हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है मिनिमम टाइम गैप ऑफ 90 डेज, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. बट या यू कैन डू दैट बेटा, नथिंग टू वरी, चलेगा. और वो भी बेटा जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट दर्शना, प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने डिस्क्लोज किया है? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? पकड़ा गया वो चोर है. तुम समझो, वी आर अ ब्यूटीफुल कंट्री बेटा, ओके? पकड़ा गया वही चोर है. तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने डिस्क्लोज आ? कोई प्रूफ नहीं है बेटा तेरे पास, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सब्सटैंशिएट दैट इन द कोर्ट, क्योंकि कानून मांगता है सबूत, और सबूत तुम्हारे पास नहीं होएगा. सो मैंने किया, जा प्रूफ करके दिखा. हाँ, दैट्स द डिफिकल्ट फैक्ट, राइट? सो इट्स ओके दर्शन, नॉट टू वरी, बिंदास करो बेटा, धंधे में सब डरने का नहीं. आगे गोइंग फर्दर टू क्लॉज नंबर एफ. 1 मिनट, 5 सबमिशन हो गया, तेरे को समझा गया? कितने दिन में करने का है? हाँ बस याद रखो बेटा. हाँ, डू नॉट फॉरगेट वेयर वी स्टार्टेड. हाँ चलो, सो 20 दिन के अंदर सबमिशन करने का. 5 सबमिशन हो गया. 6 वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, मेरे को नहीं आता है वो. एड्रेस और करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज रजिस्टर्ड. मतलब क्या है बेटा? एक टेम्परवरी एड्रेस देना पड़ेगा. काय को टेम्परवरी? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस इज द ओनली थिंग विच इज अलाउड टू बी नॉट देयर इवन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब अगर मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है और मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, चलेगा, चलेगा. और इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस आया ना, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड विद इन 30 डेज. तो क्या है ये? तो मैं प्री इनकॉर्पोरेशन हूं. आर यू ऑल विथ मी? ये मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तभी मेरे पास ऑफिस नहीं है, तो चलेगा क्या? चलेगा. पर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 30 डेज के अंदर ऑफिस आ जाना चाहिए. डू वी गेट दैट? पर मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कैसा करेगा? For that, I'll need to give a temporary address, and that temporary address is called as the address for correspondence. Do we get that? Yeah. So let us say some of you are outstation students. Any outstation students? Yeah. From where, beta? Unnati, where are you from? Jodhpur. Okay. So let's say Jodhpur. Okay. Let us take up an example. तो वैसे बहुत सारा स्टूडेंट निकला यार आउटस्टेशन वाला, गजब है. ओके, तो मान लो जोधपुर राजस्थान से उन्नति यहाँ पे आई है. आप लोगों ने सबने सीए का फॉर्म्स भरा होगा, राइट? आपका वो जो फॉर्म होता है ना, उसमें 2 बार एड्रेस लिखना पड़ता है. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. एक होता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस. ये किया होगा, राइट? तो आप सब लोगों ने, राइट, ओके, जीत एक्सेट्रा एवरीवन, आप लोगों ने क्या किया होगा? दोनों का सेम होएगा. आपके लिए दोनों सेम होएगा. पर लेट्स से उन्नति और अदर्स वो एड्रेस देयर है, वो लोग क्या देगा? परमानेंट एड्रेस फॉर उन्नति इट विल बी जोधपुर, राइट? पर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस इट विल बी सम एड्रेस इन मुंबई वेयर शी इज करंटली स्टेइंग. डू वी अंडरस्टैंड दैट? सेम कंपनी के लिए है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कुछ और है, पर अभी मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है. टेम्पररी तू मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है ना, तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे कर ले. डू वी गेट दिस? नो वन इज सेइंग यस सर. कैन द करस्पॉन्डेंस एड्रेस and the registered address for my company be the same? Obviously yes. Obviously yes. So that is what you all Mumbai students will have, कि आपका address for correspondence भी same है और permanent address भी same है. Is that correct people? Yeah. चलो, one last submission now. That is the submission for verification of your registered office. Guys, registered office is the only thing which you can have even after incorporation, but maximum within 30 days. Maximum within 30 days. And once you have your registered office, you have to get it verified. You have to get it verified. Why verified from the ROC? क्योंकि बेटा ROC considers you as full of dote. उसको पता है बेटा कि तू विश्वास करने लायक व्यक्ति है ही नहीं. क्या होएगा बेटा? अपन भलता चलता एड्रेस दे देगा, कौन देखता है? ये अपना एटीट्यूड है बेटा. कुछ भी कोई भी नंबर डालना कौन देखता है? इसके लिए सालों ने ओटीपी चालू किया है कि तुम लोग कोई भी नंबर डाल, तू नंबर डालेगा, डालना बिंदास. हाँ, तो उन लोगों ने ओटीपी चालू किया कि ओटीपी के बिना तो आगे नहीं बढ़ेगा. यहां पर सेम है कि एड्रेस डाला है तूने,
तूने एड्रेस, कोई भी एड्रेस डाला हुआ है, वो एड्रेस बेटा अस्तित्वात नहीं, या फिर वो तेरा एड्रेस ही नहीं है बेटा। अगर तेरा एड्रेस नहीं है, वो लोग छानबीन करने के लिए आएगा। सो व्हेन यू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस, यू हैव टू गेट इट वेरीफाइड। बहुत बार तुम गलत एड्रेस डालता है, जो बिल्डिंग है ऑफिस है पर वो तेरा नहीं है। बहुत बार तुम एड्रेस डालता है जो बिल्डिंग ही अस्तित्वात नहीं बेटा, कि साला बिल्डिंग ही नहीं है। मुंबई का बीएमसी का रिकॉर्ड में बिल्डिंग ही नहीं है, तुमने वहां पर बिल्डिंग बनाया, वो रेलवे ट्रैक है, वो लोकेशन, तुम बेटा काबिल है बेटा। ओके तो ऐसा नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई दे वांट योर रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी वेरीफाइड। उसमें एक कंसेप्ट है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या खरीदा हुआ ही होना चाहिए? इज इट लाइक परचेस्ड ऑफिस होगा तो ही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा? नहीं, दिस इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। लाइक लेट्स से एडनोवेट का ही हेड ऑफिस है, राइट? दिस इज ऑन रेंट, सो दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। डू यू अग्री विद दिस? या पर मान लो आप अमीर लोग हैं बेटा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस परचेस्ड है, तो उसका प्रूफ क्या है कि परचेज किया है? अबे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, तो आपके पास अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसका कॉपी दे दो, फाइल इट विद द आरओसी। पर हमारा ऑफिस जो है वो परचेज नहीं है, रेंट पे है, तो हम लोग क्या देगा? रेंट एग्रीमेंट, नोटरी किया हुआ। नोटरी पता नोटरी, वो लाल लाल स्टिकर डालता है, हाँ वो ही बेटा, हाँ तो नोटरी किया हुआ रेंट एग्रीमेंट जमा कर दो, राइट? थर्ड, देयर इज वन मोर वे, बिकॉज वी आर इन मुंबई, ओके? देयर इज अ सिस्टम इन मुंबई कॉल्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम, या लोकल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं पागड़ी सिस्टम। पागड़ी सिस्टम करके तुमने कुछ वर्ड सुना होगा अपने जीवन में, सुना है अमीरों? हाँ क्या बेटा, हम गरीब लोग हैं बेटा, हम लोग को पागड़ी सिस्टम पता है, तुम अमीर लोग बेटा बंगले में रहते हैं। सुनो तो बेटा, लैंडलॉर्ड सिस्टम या पागड़ी सिस्टम करके कंसेप्ट होता है, और मुंबई में बहुत फेमस है, मुंबई में बहुत 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 ज्यादा फेमस है। पुराना जो हमारा बिलीफ था इन मुंबई, हाउ वुड दैट वर्क? एक प्लॉट ऑफ लैंड होएगा, उसका एक लैंडलॉर्ड होएगा, उसका एक लैंडलॉर्ड होएगा। वो लैंडलॉर्ड क्या करेगा पता है? वही प्लॉट पे 3-4 माले का बिल्डिंग बना देगा, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर पे शॉप वॉप खोल देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे वो लोगों को वो घर दे देगा, और टॉप फ्लोर पे खुद रहेगा, खुद रहेगा। ये उसका फोर्ट की तरह हो गया, ओके? तो ये मेरा गढ़ है, वो ऐसा करके, मैं यहाँ का बाजीराव सिंघम, ऐसा। तो ये लोग लैंडलॉर्ड क्या करेगा पता है? लैंडलॉर्ड आर द मोस्ट इनसिक्योर क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, मोर इनसिक्योर देन अ गर्लफ्रेंड बेटा, ओके? तो वो लोग क्या करता है? फ्लैट बेचेगा नहीं, ऑफिस बेचेगा नहीं, वो लोग वो पागड़ी पे देगा। पागड़ी मतलब क्या होता है पता है? हैवी डिपॉजिट। मान ले तूने 2 करोड़ का ऑफिस पागड़ी पे लिया है, उधर से 2 करोड़ रुपया नहीं लेगा, वो बोले एक काम कर 1 करोड़ रुपया दे, हैवी डिपॉजिट, लैंडलॉर्ड सिस्टम, हैवी डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ पता है? यू विल ओनली स्टे इन दैट ऑफिस, बट वो तेरा हुआ नहीं है, तू मेरा कोई ना हो, कि ऐसा हो गया बेटा, समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो गया कि ऑफिस खरीदा नहीं, पर पागड़ी पे लिया, यस, मतलब यू विल बी देयर फॉर एवर, पर ओनरशिप मेरे नाम पे, आई एम द लैंडलॉर्ड, आई एम द लैंडलॉर्ड। ये कुछ पॉइंट समझ में आता है आपको? नो वन सेज यस या ओके? तो अभी उसमें अगर तू साउथ बॉम्बे साइड जाएगा, ओके, सोबो, नॉट साउथ बोरीवली बेटा, साउथ बॉम्बे, अगर तू वहां पे गया तो मोहम्मद अली रोड, क्रॉफर्ड मार्केट, वहां पर ऐसा ऑफिस बहुत है, बहुत सारे ऑफिस है। सो लेट अस से, जस्ट टेकिंग अप एन एग्जांपल, ओके? मान लो आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स ओवर देयर, आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स ओवर देयर, ओके? क्रिश जो है उसके पास वहां का एक पागड़ी पे ऑफिस है, he is having one office in my premises on pagdi system, okay? Let us say Ayushi jo hai, she wants to open up a company in that premises. Ayushi wants to open up a company in a premises taken on pagdi system, matlab landlord system, by Krish, and I am the landlord. ये समझ में आता है ट्रांजैक्शन? ओके, अब क्रिश जो है वो आयुषी को बोलेगा डन, ये मेरा ही है ऑफिस, आपको चाहिए तो आप ये रेंट पे ले लो, डन। आयुषी विल से डन, पर रेंट एग्रीमेंट क्रिश और आयुषी के बीच में नहीं हो सकता, बिकॉज क्रिश इज नॉट द अल्टीमेट ओनर। तो व्हाट विल दे नीड टू डू? यू नो, दे नीड टू टेक अ authorization letter from me, from the landlord, where I will say I authorize Mr. Krish, who is a tenant in office number XYZ, to give it on rent to Miss Ayushi. नहीं समझा आपको? समझा यहाँ पे क्या हुआ? तो ये प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं हुआ, ये रेंट अग्रीमेंट भी नहीं हुआ, ये ऑथोराइजेशन लेटर हुआ। पर ये कभी आएगा? सिर्फ लैंड लॉर्ड सिस्टम में। ये सिर्फ कभी आएगा? लैंडलॉर्ड सिस्टम में। डिड यू फॉलो दिस ऑल ऑफ अस? या 3 तरीका, या तो रेंट अग्रीमेंट होएगा, या तो प्रॉपर्टी का पेपर होएगा, या तो ऑथोराइजेशन लेटर। अभी क्लियर? पर
सी बेटा वी आर इन इंडिया एंड इंडियंस आर वेरी तेजस्वी. हम लोग क्या है ना बेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट तुम बोलो, वी कैन मेक अ ओरिजिनल फेक. अ ओरिजिनल फेक. द फेक इज सो ओरिजिनल दैट द ओरिजिनल लुक्स फेक. हमारा कला है बेटा. तो हमने क्रिस को बोला कि ऑथराइजेशन लेटर, उसने मेरे साइन के साथ बना के दे दिया आयुषी को ऑथराइजेशन लेटर. प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, क्रिस ने मेरा लैंडलॉर्ड का अग्रीमेंट बना के आयुषी को दे दिया बेटा, खत्म, कि वो प्रॉपर्टी उसका है. तो ऐसा है ना बेटा, प्रॉपर्टी का पेपर फेक बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है बेटा. ओके, मैं एड्रेस देगा तुमको बाद में. सुनो, द पॉइंट इज, ऐसा बहुत जगह है बेटा जहां पर ये फेक जगह, आई मीन फेक चीज बन जाता है. तो अभी आरओसी क्या बोलता है बताए कि यार तुम लोग के ऊपर भरोसा कैसा करेगा. एक तो यार मुझे तुम्हारा अग्रीमेंट का कॉपी चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए बोलते हैं नोटरी वोटरी किया हुआ लेके आओ, सो दैट मैं नोटरी के साथ क्रॉस चेक करेगा. राइट. सेकेंड, अगर तुमने कोई ऐसा ही बिल्डिंग का नाम डाला जो बिल्डिंग अस्तित्व नहीं, तो मैं बिलीव कैसा करेगा. इसके लिए वो लोग क्या बोलता है, प्रॉपर्टी अग्रीमेंट लाओ, या नोटरी किया हुआ रेंट अग्रीमेंट लाओ, या ऑथराइजेशन लेटर लाओ, तीनों में से कोई भी चलेगा. प्लस जो बिल्डिंग तुम बोलता है ना जहां पर तुम्हारा ऑफिस है, वो बिल्डिंग है कि नहीं उसका प्रूफ लाओ. तो उसका प्रूफ क्या होएगा पता है, वो बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग है, गैस कनेक्शन होएगा, वाटर कनेक्शन तो होएगा, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना तुम बेटा कंपनी चला कैसे रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी तो होएगा. डन. तो जो भी प्रीमाइसेस है, भले तुम्हारा नहीं है चलेगा, मेरे को उसका यूटिलिटी बिल का कॉपी चाहिए मेरे को. लेटेस्ट 2 महीने का तुम लेके आएगा सन 1990. ओके, तब का कोई यूटिलिटी बिल नहीं चाहिए मेरे को. लेटेस्ट 2 महीने का यूटिलिटी बिल लेके आओ, प्लस प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, प्लस रेंट अग्रीमेंट, प्लस ऑथराइजेशन लेटर. डू वी गेट दैट. ये आपको सबमिट करना है टू द आरओसी एज अ वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. फॉर्म नंबर INC 22. इज दैट क्लियर. पर एक लास्ट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, दैट इज कि गाइस बहुत बार क्या होता है कि एक ही प्रीमाइसिस में, एक ही प्रीमाइस, जैसे एडनोवेट का इतना बड़ा प्रीमाइस है यहां पे, राइट. बहुत बार क्या होगा, ये एक ही प्रीमाइस में 4-5 कंपनी रजिस्टर्ड होता है. एक ही प्रीमाइसिस में 4-5 कंपनी रजिस्टर्ड होता है. तो आरओसी को लगता है कि ओ सीट, ये लोग तो सब फ्रॉड है, एक ही प्रीमाइस में इतना सारा कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है. तो आपको क्या करना है, दैट यू विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ एवरी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन योर प्रीमाइस. तो मेरा पहला कंपनी था, तो मैंने सिर्फ मेरा डिटेल दिया, ठीक है. क्रिश का सेकंड कंपनी था, क्रिश क्या करेगा, खुद का डिटेल प्लस मेरे कंपनी का डिटेल. आयुषी का थर्ड कंपनी था, आयुषी विल गिव खुद का डिटेल प्लस क्रिश प्लस मेरा डिटेल, एंड दिस विल बी द सिमिलर वे फर्दर. डू वी गेट दिस ऑल ऑफ अस. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. फॉर्म नंबर क्या है, INC 22. विद इन 30 डेज मैक्सिमम मिलेगा. दिस इज द ओनली थिंग जो आपको इनकॉर्पोरेशन के बाद भी करने को मिलेगा. पर कितना दिन, मैक्सिमम 30 डेज. ओनली दिस पॉइंट इज अलाउड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, विद इन मैक्सिमम 30 डेज. अभी क्लियर. पढ़ो जरा मेरे साथ, चलो. INC 22, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड अग्रीमेंट ऑफ परचेस और नोटराइज रेंट अग्रीमेंट along with a copy of rent paid receipt not older than 1 month, or authorization letter from the owner to use the premises by the company as registered office. ये कब आएगा authorization? I'll say landlord system. लैंडलॉर्ड सिस्टम में आएगा ये, राइट. बेटा 2 बार और आ गया, मतलब तीनों में से कोई भी एक. एंड मतलब ये जो लास्ट, आई मीन 4th पॉइंट है, वो हर एक बार जाएगा, हर एक बार. लेटेस्ट 2 months का यूटिलिटी बिल, इट कैन बी एनीथिंग बेटा, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, whatever that is. Okay, your choice. 5th, there shall be attached to form number INC 22 the list of all other companies which with their CIN. What is CIN? Corporate Identification Number. आगे आने वाला है, don't worry. CIN if any, having the same unit tenement of premises as their registered office address. तो ये भी आपको आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा. What are these बेटा? These are your 7 submissions to the ROC. कौन सा था पहला वाला? MOA AOA signed by all the subscribers. Second, INC 8, 1 outsider, 1 insider. Third, INC 9, all subscribers, all first directors, no conviction in the preceding 5 years. Fourth, directors and all subscribers, आपको क्या देना पड़ेगा? Proof of identity plus proof of address. Fifth, only first director consent plus disclosure of no conflict of interest. 6th one क्या था? Address for correspondence. And the 7th one, verification of registered office in form number INC 22. ये कितने दिन में करने का?
20 days. नहीं, सातों point. 20 days from the date of reservation of name. INC 22 is the only thing which is allowed to be done even within 30 days from the date of incorporation. Done. 5 steps. Yeah, chalo. I'll see you in the next lecture. Bye. Guys, wait. Homework करके आने का है. All 8 questions have to be written by you. Chalo, bye.